Hello everyone. Uh, we are here to discuss the problems of weekly contest of lead code. Okay, so let's start with the problem number one. Okay, yeah. So the problem number one is that let's understand the problem. You are given a 2D integer array. Okay, 2D integer array tasks where task I, Si, and Ti. Basically, what is it? What is it? Huh. We have an array that is nums, suppose that, okay, and we have a 2D array. 2D array nums, basically where each element is a pair of integers. Understand? Like हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक्स है 2D array में, but we just have a 2D array in which each element is a pair of integers. You understand? Suppose that 1 6 is a pair of integers. So it is the complete element. 1 6 is a complete element, but it is a pair of integers. Okay, and 2 3 is a single element and it is a pair of integers. So we have this kind of array. Now understand what is the further description of the problem. Each Si and Ti in task represent a task with the start time Si S1 that takes T1 units of time. Suppose that here, let's understand. Wait, okay. Uh, hmm. See, look, suppose that we have a pair 1, comma 6. Okay. So what does it do? What does it do? It is basically it tells basically that the work starts at time. Let's imagine 1 p.m. or 1 a.m. Anything at time 1. Okay. And it takes, suppose that 1 p.m. We can imagine 1 p.m. Okay, for the simplicity and to make the problem easily understandable. Okay. Now it takes 6 hours. Suppose that. Okay. So basically the completion time will be what? 1 plus 6. That is that is 7 p.m. Okay. Okay. So basically the work starts at 1 p.m. That is the first element that tells us the starting time. And the second element tells us about the time taken to complete the task. So basically the completion time will be 1 plus time taken. That is 7. That will be our completion time. Okay. Now let's understand the further description. Okay. Return the earliest time at which at least one task is finished. Return the earliest time at which at least one task is finished. इसका मतलब है कि जितने भी टास्क दिए हुए हैं हमें यह पता लगाना है कि कौन सा, मतलब किस कौन से कम टाइम में एटलीस्ट एक काम हो चुका होगा. हमें बस ये देखना है, हमें सारे काम से मतलब नहीं है. वी वी आर जस्ट इंटरेस्टेड to track if a single task is completed, and then we will fetch its the time completion, like completion time. Okay. Let's understand in more depth with the examples. Okay. Yeah. So this is an array 1 6 and 2 3 and the output is 5. How it came, let's understand with the explanation. The first task start at time t is equal to 1 and it finishes at the time 1 plus 6 7. How? Because the starting time was 1 p.m. I already explained you that the starting time, suppose that 1 p.m. and it took 6 hours to complete the task. So the completion time will be 7 p.m. Basically, the completion time will be the addition of the time taken to the starting time. Okay. You all know like how it works in a clock. Okay. Now, so the completion time is 7. If we talk about the second task, so the task started, like the starting time of the task is 2 p.m. Suppose that if we talk about second task, that is 2 comma 3. So
starting time is 2 p.m. Okay, and completion time. Completion time. What will be the completion time? Tell me. I mean, let's calculate yourself. The completion time will be 2 plus 3. 3 hours. I mean, it took 3 hours to complete the task. Okay, so 2 plus 3 is equal to 5 p.m. Okay, okay, good. Hmm. So, and the answer was 5. Why? Why? Because what we have to ultimately check, we have to check, just a second. Just a second. Yeah. So, you can't mark anything basically. So, yeah. Oh, wait. Huh. So, we have to check this one. We have to check this value. This value. Wait. This value to be checked. This value to be checked. Okay. This value to be, wait. This value to be checked. And this value. And this value to be checked. तो अब यहां से एक इंसाइट आपको मिल गया होगा दैट हमें जो मतलब है हमारे पूरे 2D एरे से, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम value of each task, each element, basically the minimum value of each item. What does it mean actually? That we have to calculate the sum of our pair of integers in a single entity. See, entity क्या होगी? Entity होगी, if you more elaborate, this will be an entity. ये एक entity होगी. Okay, this is entity. Okay, so हमें कैलकुलेट क्या करना है? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल एंटिटी और उनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी, अर्लीस्ट टाइम क्या होगा? अर्लीस्ट टाइम हम पहले बता तो अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए हमें हर टास्क का कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा. ओके, तो अब कंप्लीशन टाइम कैसे निकलेगा? कंप्लीशन टाइम निकलेगा टास्क जब स्टार्ट हुआ है एंड द टाइम टेकन. ओके, सो बेसिकली हमें सारे कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करने हैं एंड देन हमें जो जो मिनिमम वैल्यू होगी वही अर्लीस्ट टाइम होगा, वही हमें रिटर्न करवा देना है. ओके, तो बेसिकली हम प्रॉब्लम का लॉजिक समझ गए हैं. अब अगर हम कोड की तरफ चलेंगे तो हम कोड कैसे करेंगे? बेसिकली हम करेंगे क्या? सी, वेट. ओके, तो हम क्या कर रहे होंगे बेसिकली? ओके, सो हम क्या कर रहे होंगे? सपोज दैट हमारे पास एक एरे है, हमारे पास नम्स एरे. सी, नम्स ही एरे है हमारे पास. अगर हम कोड में जाते हैं तो हमारे पास, सॉरी, ये टास्क टास्क से करेगा. ओके, टास्क से एक एरे है. ठीक है, इसे भी टास्क ही कर लेते हैं. जस्ट इसे भी टास्क ही कर लेते हैं. ओके, या सो हमारे पास क्या है? टास्क एक एरे है. ओके, टास्क एक एरे है हमारे पास. अब हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? हमें हर एक जो हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ लाइक क्या कहते हैं, एरे ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स है ना हमारे पास. तो हम क्या करेंगे? हर एक पेयर का सम निकालेंगे. हर एक पेयर का सम निकालेंगे. हम क्या करेंगे? स्टेप वन, कैलकुलेट कैलकुलेट सम ऑफ ईच पेयर. अब इसका मतलब क्या है? हमें हर एक पेयर का सम कैलकुलेट करना है. ईच पेयर का मतलब है कि हमें इटरेट करना होगा हर एक पेयर के ऊपर. तो हम बेसिकली एक लूप चलाएंगे फॉर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. हम एक लूप चलाएंगे. ओके, हम एक लूप चलाते जाएंगे और हम एक मिनिमम वैल्यू, हम एक यहाँ पे एक इंटीजर असाइन करेंगे. इंटीजर मिनिमम, सॉरी, अर्लीस्ट टाइम. सपोज दैट अर्लीस्ट टाइम. ओके, अर्लीस्ट टाइम. और क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग में इसमें फर्स्ट वैल्यू असाइन कर देंगे. ओके, हम सब फर्स्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि टास्क मतलब फर्स्ट पेयर.
सम ऑफ फर्स्ट पेयर असाइन कर देंगे। ओके। और फिर हम इसी से हम ट्रैक करेंगे जब हम इटरेट, वेट वेट, ना ओके। अब हम जब इटरेट कर रहे होंगे तो हम करेंगे क्या बेसिकली? ओके। जब हम इटरेट कर रहे होंगे तो इसी के अंदर क्या करेंगे कि इफ सम ऑफ न्यू पेयर, इफ सम ऑफ न्यू पेयर इज लेस देन, इज लेस देन जो अभी हमारे पास अर्लीस्ट टाइम है। ओके। अर्लीस्ट टाइम है जो अभी हमारे पास अर्लीस्ट टाइम है ना। अगर ऐसा है देन वी विल जस्ट असाइन दिस न्यू, दिस न्यू मिनिमम, दिस न्यू अर्लीस्ट टाइम, सम ऑफ, सभी के ऊपर हम ऐसे इटरेट करेंगे और लास्ट में हम ये वैल्यू रिटर्न करवा दें। रिटर्न अर्लीस्ट, अर्लीस्ट। See, if we look at the code, then see, जब आप कोड पे जाएंगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू के लिए हम जीरो भी रख सकते थे मिनिमम के लिए, लेकिन जीरो नहीं रख सकते थे एक्चुअली। जीरो अगर रखेंगे तो मतलब हो सकता है कि वो जितने भी सम आ रहे हो उन सबसे छोटा ही हो। और जीरो कोई वैलिड टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम तो ले ही रहा है, लाइक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो। ओके। सो बेसिकली हमने यहाँ पे साइज ऑफ एरे कैलकुलेट किया, साइज ऑफ एरे कैलकुलेट किया। ओके। एक शर्त है, अगर n इज ग्रेटर देन वन, तभी सपोज दैट एक ही पेयर है हमारे पास, तो फिर हम सीधे सीधे उसका सम, देखो हम पहले पेयर का जो हमारा फर्स्ट पेयर है, द फर्स्ट पेयर ऑफ array is assigned already to the earliest time, that is the value to be returned at the end. ओके। तो अगर एक ही वैल्यू है, लाइक एक ही पेयर है हमारे पास, तो फिर हम लूप इटरेट ही नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा पेयर है, देन वी विल इटरेट throughout the pairs, and we will calculate the, like we will basically store the earliest time that we get to just, I mean, by just completing the single task. Okay. And then we will return this completion time. Okay. Earliest time. And if we run about the code, then save. And if, when we submit, it is submitted. Okay. So this was the first question. Let's understand the second problem quickly. Okay. So you are given now the second problem. Now understand the second problem from here. Okay. From here. Yeah. So if you talk about you are given a positive integer array nums and integer k. Okay. So basically हमें हमें दिया क्या हुआ है, एक nums array दिया हुआ है, it is an array of positive integers, of positive integers basically. Okay. Positive integers and a value k, that is also an integer, that is also an integer. Okay. Now choose at most k elements, at most मतलब maximum. Okay. At most k elements मतलब k से कम भी चूज कर सकते हैं और k भी चूज कर सकते हैं, k से ज्यादा नहीं चूज कर सकते हैं। Now how, I mean how to choose, let's understand from nums. Okay. So that their sum is maximized. Okay. Basically ये कह क्या रहा है, कह क्या रहा है कि हमारे पास जो nums array है ना, what we have to do, मतलब nums जो array है ना, we have to we have to choose, we have to choose less than or equal to k elements, less than or equal to, like k tells us the number of elements to choose. अब क्या करना है, टू मैक्सिमाइज दैट, टू मैक्सिमाइज दैट। सी, जैसे ही इसने मैक्सिमाइज करने की बात की, सम ऑफ इंटीजर्स को मैक्सिमाइज करने की बात की, तो आपके दिमाग में तुरंत ये स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें, एक मिनट, गॉड,
ओके। हाँ, तो जैसे ही इसने मैक्सिमाइज करने की बात की, आपके दिमाग में तुरंत ये स्ट्राइक होना चाहिए कि एक्चुअली हमें जो लार्जर एलिमेंट है उनके साथ खेलना है। लार्जर एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट जो है, जो लार्जेस्ट पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे ये देखते हैं। ओके। हाउएवर द चूजन नंबर मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ओके। अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। रिटर्न एन एरे कंटेनिंग द चूजन नंबर इन स्ट्रिक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके। सो बेसिकली हमारे पास एक एरे है। ओके। हम इसको ले लेते हैं। ठीक है। हमारे पास एक एरे है। ओके। So we have an array. What is the array? Nums is equal to which array we have? Okay, this is the array we have. 84, 93. Okay, 84, 93, 100, 77, 7, 90. This is the array we have. Okay, and what is the value of k? That is that is 3. Okay, that is 3. That is 3. Okay. So अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, इसने क्या रिटर्न किया है? 100, 93, 90। बेसिकली जो जो लार्ज आई मीन जो लार्जेस्ट मैक्सिमम जो लार्जेस्ट के वैल्यूज इस एरे में, जो लार्जेस्ट के वैल्यूज हैं, बेसिकली उसने ये रिटर्न कर दी। ओके। और सिंपल सी बात है, अगर हमें मैक्सिमम सम चाहिए तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू के साथ ही खेलना पड़ेगा, हमें लार्जेस्ट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। ओके। तो बेसिकली तो अगर हमें ये करना है तो हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं, दैट सॉर्ट दिस एरे। सॉर्ट शॉर्ट नम्स। ओके। अगर हम शॉर्ट नम्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें एक एरे मिल जाता है सीधे सीधे। 100, 93, 84, 84, नो, 193, 193, 90, 84, 77। सो हमें ये एरे मिल जाता है। सिंपल सी बात है। अगर हम देखें तो उसका आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? फर्स्ट थ्री वैल्यूज है, फर्स्ट थ्री लार्जेस्ट वैल्यूज है। तो अब आपके दिमाग में ये आ सकता है, आप इतना तो आपके इस दिमाग में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमें इस एरे को सॉर्ट करना है। और फिर हम क्या करेंगे, जितने ये के टाइम्स है ना, तो के टाइम्स हम इस एरे को, के टाइम्स लाइक वी विल वी विल इटरेट इटरेट ओवर दिस ओवर दिस सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड नम्स एरे, के टाइम। ओके। के टाइम अगर हम ये करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। बट इसमें बाकी और भी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें जो एक लाइन इससे जुड़ी है, हाउ वुड द चूजन नंबर्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ओके। इसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा क्वेश्चन में। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का रोल तभी आता है जब हमारे एरे में कुछ सेम एलिमेंट्स होंगे। एग्जांपल टू में कोई सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। हम एक एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली उसका मतलब क्या है। ओके। सो बेसिकली अगर हम इस एरे को देखें, wait, wait, अगर हम इस एरे को देखें, वेट, अगर हम इस एरे को देखें, इस नम्स एरे को, बेसिकली ये क्या है? वन, वेट, 1 1 1 2 2 2, 1 1 1 2 2। पहली बात, सॉर्टेड तो ये पहले से ही है। जो हमें सॉर्ट करना होता है तो सॉर्टेड तो ये पहले से। ओके। सॉर्टेड सॉर्टेड पहले से है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले करेंगे। ओके। तो हम पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट, हमने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी, सॉर्ट नम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके। तो अब हम क्या करते हैं सॉर्टिंग सॉर्टिंग करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके। अब तो आपको पता ही है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो बेसिकली 2 2 1 1। ओके। ये हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है? बेसिकली हमने पहले क्या डिसाइड किया था? वी विल इटरेट, एक मिनट, वी विल इटरेट ओवर दिस सॉर्टेड नम्स एरे के टाइम्स। ओके। के टाइम। तो अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? के की वैल्यू यहाँ पे 6 दी हुई थी। के की वैल्यू यहाँ पे 6 दी हुई थी। अगर हम देखेंगे, देखो, के की वैल्यू 6 दी हुई थी। ओके।
तो अब हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, अगर हम वी विल इटरेट ओवर दिस सॉर्टेड एरे नम्स एरे के टाइम्स, तो अगर हम इसके ऊपर इटरेट करेंगे, पूरे इस एरे के ऊपर इटरेट करेंगे, तो बेसिकली इनका सम हमें करते जाना है ना, मैक्सिमम वैल्यू मतलब सम ऑफ लाइक हमें सम को मैक्सिमाइज करना है ना, तो अगर हम सम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 2 + 2 1 + 1 + 1, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, 2 + 2 + 1 + 1 + 1। हम इस एरे के ऊपर 6 टाइम्स k = 6 है ना, तो 6 टाइम्स हम इटरेट करेंगे, तो हमें बेसिकली क्या वैल्यू मिल जाएगी, 9। ओके, क्या आउटपुट 9 है, एक बार हम देखते हैं। आउटपुट तो इसका 9 है, बेसिकली हमें एरे रिटर्न करना है, तो आउटपुट तो इसका क्या है, 2 और 1 है। मतलब हमारा ये एरे बेसिकली क्या होना चाहिए, हमें ये वाला एरे, ये जो वाला एरे जो है, एक मिनट, इटरेट जो कर रहे हैं, तो हमें 2, 2, 2, 1, 1, या हमें ये एरे रिटर्न कर देना चाहिए था, ये एरे रिटर्न कर देना चाहिए था। ओके, लेकिन 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 इसमें आया क्या है, सिर्फ 2 और 1 है, वो क्यों, इस लाइन की वजह से। इसने कहा था हाउ एवर द चूजन नंबर मस्ट बी डिस्टिंक्ट। चूजन मतलब अगर एक नंबर कोई बार मतलब एरे में अगर डुप्लीकेट नंबर है, मतलब फॉर द सेम नंबर, सपोज दैट टू, टू क्या है, एक बार नहीं, यूनिक नहीं है, डुप्लीकेशन है इसमें, मतलब 3 बार आया, हम उसको एक ही बार सेलेक्ट करेंगे, एक ही बार सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक ही बार सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम जब एक बार सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, तो अगर हमने सपोज दैट एरे के ऊपर, हम नम्स एरे के ऊपर है, नम्स एरे पर, लाइक ऑन नम्स एरे अगर हम 6 टाइम्स इटरेट करते हैं, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, 2 है। अब उसके बाद क्या है, 2 का डुप्लीकेट है, ये सारे 2 के डुप्लीकेट है, वी विल नॉट स्टोर देम, एंड देन हमें 1 मिला, फिर सारे 1 के डुप्लीकेट है। ओके, तो अब डुप्लीकेट हम नहीं लेंगे, यूनिक नंबर जो हमारे पास 2 और 1 वो आ चुके हैं, तो हम 2 और 1 स्टोर कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली हमें आंसर मिला। हम यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार क्या हो सकता है, कई बार क्या हो सकता है, सपोज दैट एक एरे है हमारे पास, लेट्स इमेजिन, वेट वेट वेट, हाँ, लेट्स इमेजिन। बेसिकली क्या है, हम एक चीज जो गलत कर रहे थे, वो कर रहे थे कि हम जितने नंबर के टाइम्स, हम जो है के टाइम्स एरे को इटरेट कर रहे थे। हमें के टाइम्स एरे को इटरेट नहीं करना है। देखो, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते तो ये भी चलता, लेकिन सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, अगर हम देखें, अगर हम हमने 6 टाइम इटरेट किया, लेकिन हमारे पास वैल्यू, हमारे बेसिकली हमारे पास कितने, हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास वैल्यू तो 2 ही है ना। अगर हम देखें, अगर हम इसमें देखें, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज आर अप टू, और व्हाट वाज, दैट इज लेस देन, दैट इज लेस देन के, और हमें मैक्सिमम इसको मैक्सिमाइज करना है बेसिकली हमारे पास, लेकिन हम इसको मैक्सिमाइज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास एरे ही नहीं बचा है। एक बार हम स्टोर करने के बाद, 1 के बाद हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो बेसिकली इटरेशन हम कितनी बार करेंगे, ये के की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एरे है, नम से, मैं सॉर्टेड वे में ही लिख देता, इजी रहेगा। ओके, या, सो बेसिकली ओके, सो लेट्स टेक अबाउट, लाइक वी हैव 13, ओके, 13, 9, देन 9, ओके, 9, देन 9, देन 7, देन 6, ओके, देन 6, देन 5, देन 5, देन 2। अब हमारे पास सपोज दैट ये एरे है, ओके, सपोज दैट ये एरे है, ओके, एंड सपोज दैट हमारे पास ये एरे है, ओके, और जो के की वैल्यू है वो 5 है। ओके, के की वैल्यू 5 है, एट मोस्ट हमें के एलिमेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो अगर हम लूप के ऊपर इटरेट करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 13 हो जाएगा। ओके, 13 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा हमारा 9 हो जाएगा। फिर अब डुप्लीकेट है, अब सारे डुप्लीकेट है, तो हम 9 9 को स्किप कर देंगे, अब हमारे पास आएगा 7, 7 आएगा। अब देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू के अगर इटरेट करें, अगर हम के टाइम्स इटरेट करें, तो हमारा एरे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, हमारा एरे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्या होगा अगर हम, सी, if we iterate if we iterate with k, then array will
स्टॉप एट एलिमेंट 7, एट एलिमेंट 7 बेसिकली, ठीक है। क्योंकि हम 5 बार इटरेट हो चुका होगा, लेकिन हमें 7 पर नहीं रुकना है। हमें बेसिकली अभी हमारे पास कितने एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए, 3 सेलेक्ट, हमें एटमोस्ट 5 एलिमेंट्स तक जाना है, और तभी हमारा सम मैक्सिमाइज होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट हम समझते हैं कि इसको इटरेट कैसे करेंगे। अब हम आगे भी इटरेट करेंगे, 7 के बाद हम 6 लेंगे, फिर हम 5 लेंगे, 5 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, हर बार चेक करेंगे, जैसे जैसे हम एरे में ऐड करते जाएंगे हम इसका साइज चेक करेंगे। सिंस इसका साइज जो 5 है वो के इक्वल हो गया, अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। ओके, अगर हम इसका सम देखेंगे तो इसका सम जो हमारा आ जाएगा, जो भी हमारा सम आएगा वो मैक्सिमम आएगा। सपोज दैट 9, 16, 39, 29, 35, 40, 40 इसका सम आया है। दैट इज द राइट सम। और अगर हम अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम के साथ इटरेट नहीं करेंगे तो इटरेट किसके ऊपर करेंगे। तो बेसिकली इटरेट हम करेंगे एन के ऊपर, एरे के ऊपर। इटरेट हम एरे के ऊपर करेंगे, और कितनी बार इटरेशन करेंगे ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, साइज क्या है उस एरे का, और दूसरा हमारा के सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, हम मैक्सिमम के ले पा रहे हैं कि नहीं। इन दो चीजों पे हमारा एलिमेंट वो हमारा इटरेशन डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम के ऊपर इटरेट नहीं करेंगे। इटरेशन इटरेशन विल डिपेंड विल डिपेंड ऑन के एंड साइज ऑफ एरे। ओके, ओके। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, जो प्राइमरी हमारा हमारा जो प्राइमरी डिपेंडेंस होगी वो साइज ऑफ एरे पे होगी, और फिर हमारी जो सेकेंडरी डिपेंडेंस होगी वो होगी हमारी के पे। अगर हमारा के सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम वहां पे रुक जाएंगे। ओके, ठीक है। अब हम कोड की तरफ चलते हैं, हम कोड समझते हैं डायरेक्टली। ओके, कोड हम समझते हैं। ओके, तो दिस इज द कोड बेसिकली, सी। तो पहले हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग नम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ हमने एक वेक्टर बनाया है, दैट इज अंडरस्टूडेबल। ओके, चूज इन नंबर्स डॉट पुश बैक। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम। ओके, फिर हाँ, हमें एक नंबर तो सिलेक्ट करना ही होगा ना, तो बेसिकली उसके लिए हमने क्या किया है कि हम एक नंबर पहले इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिर के ऊपर, क्योंकि हमें बेसिकली हमने ये लूप का लॉजिक बनाया है। लूप का लॉजिक इस पर डिपेंड करता है कि हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा। आप दूसरा लॉजिक भी लिख सकते, दैट इज नॉट, आई मीन ये कोई फिक्स नहीं। ओके, ना, अब हमने ये किया किया है, हमने के की वैल्यू हमारे पास थी। अब सिंस हमने एक एलिमेंट ऐड कर लिया है तो हमारे हमारी के की वैल्यू ये कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये बहुत और ये हमने यहाँ पे साइज कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पे एरे पे देखो ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एरे को क्या करेंगे, फ्रॉम 1 to n, फ्रॉम 1 to n-1 बेसिकली हम एरे के ऊपर इटरेट करेंगे। ओके, और हम क्या करेंगे, देखो सपोज दैट हम अगर हम ये एग्जांपल लें, अब अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है। ओके, अगर हम इस एग्जांपल से समझें इस कोड को, इस कोड को। ओके, तो सी, जैसे ही हमारा 13 असाइन हो चुका होगा, ठीक है, हमारा 13 असाइन हो चुका होगा बेसिकली, ठीक है, हमारा 13 असाइन हो चुका होगा। तो इसे बेसिकली थोड़ा अलग कर दो, इसे अलग करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा 13 असाइन हो चुका, अब हम स्टार्ट करेंगे 9 से। ओके, 9 से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ओके, अब हम क्या करेंगे, नम्स आई 9 और हम 13 को i-1 को कंपेयर करेंगे, क्या ये इक्वल है, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमारा लूप आगे भी चलेगा। और k इज इक्वल टू जीरो, क्या k इज इक्वल टू जीरो तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही k इज इक्वल टू जीरो होगा हमारी मतलब क्या करेंगे ना, k को ट्रैक करते जा रहे हैं, जैसे ही एक एलिमेंट ऐड करेंगे हम k को एक माइनस कर देंगे। तो बेसिकली जब हमारे पास k एलिमेंट्स हो जाएंगे तो k की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जैसे ही जीरो हो जाएगी वो एलिमेंट ब्रेक हो जाए, मतलब वो लूप ब्रेक हो जाएगा और हम ये वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। अब अगर ये दोनों कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मतलब ये एलिमेंट्स इक्वल भी नहीं है और के की वैल्यू जीरो भी नहीं है, देन हम यहाँ पे आएंगे चूजन नंबर में, जो हमारा एरे है, वेक्टर एरे है, उसमें हम ये वाली वैल्यू पुश करेंगे, ऐड कर देंगे, और हमने एक वैल्यू और ऐड की है तो हम के को माइनस कर देंगे। इसी तरह अब जब i इज इक्वल टू 2 होगा बेसिकली, तो हम यहाँ पे 9 में होंगे। तो अब i इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू 1 पे कंपेयर हो रहे होंगे, तो 9 इज इक्वल टू 9 इक्वल निकला है, और हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करना है। तो हम यहां से कंटिन्यू कर देंगे, आगे एरे चली गई है। तब तक नहीं चलेगा जब तक कोई फिर से कोई नया एलिमेंट नहीं मिल जाता जो इसके बराबर नहीं है, मतलब जो इसका डुप्लीकेट नहीं।
ओके, सो दिस इज हाउ आवर कोड रन्स, और बेसिकली हम इसको रन करेंगे और फिर हम इसको सबमिट कर सकते हैं। देखते हैं, या रन हो गया, एंड व्हेन वी सबमिट, बेसिकली it is submitted. So this, I mean, this was the discussion of first two problems of the contest. Okay, so bye bye, take care. We will come with the next contest. Thank you.